Hi, my dear friend. Welcome you to Speak Now English. This is one of the very good platform to make you a speaker of English. I have been taught spoken English since 1998. In 2003, the inception of SpeakNowEnglish.com has transformed thousands of people to become speaker of English. This spoken English is one of the toolkit of success in your life. This toolkit, this spoken English can give you the lead to success in your life. Now this question can be arise again and again in your mind. Why spoken English? Why English speaking? Since we are in India, even we are in India, still why English speaking? Why not Hindi? Why not your mother tongue? The one of the reason behind that is since you are speaking your mother tongue, you are speaking your national language, that is the Rashtriya Bhasha Hindi. But there are so many people in our country, those who are unable to speak good English. Even though this is the procrastination, this is the kind of thinking those who have been studied up to 10th, 12th standard or whatever they have been studied, graduation, masters, either from whatever medium. But he or she or whoever, those who have already completed their education, they used to speak only one thing. मुझे समझ में तो आता है, कुछ बोल भी लेता हूं, लेकिन पूरा बोलने नहीं आता है. This question is very obstacle in your career. Now friends, you can understand if you are speaking your mother tongue, अगर आप अपनी मातृभाषा बोलते हैं तो कभी आप कहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूं, थोड़ा थोड़ा बोलता हूं. अगर आप हिंदी पूरा बोलते हैं तो कभी कहते हैं मैं थोड़ा थोड़ा समझता हूं, थोड़ा थोड़ा बोलता हूं. जिस तरह से आप अपनी मातृभाषा, जिस तरह से आप अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी बोलते हैं, उसी तरह से आपको इंग्लिश भी बोलना चाहिए अगर आप बोलते हैं. दिस इज रियली गुड. अगर कहीं पे आपको आपके मदर टंग मातृभाषा से काम चल रहा है, जहां पर आप काम करते हैं, हिंदी से काम चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर कहीं पे आपको इंग्लिश बोलना है, you have been educated throughout your career 10th 12th graduations masters and you are unable to even introduce yourself, if you are unable to give your introduction in English, so it looks very bad. You used to underestimate it over there, right? So just fill this gap, just make this gap like a bridge. Once this bridge will get close to each other and once you will start speaking that I'm speaking 100%. Whatever language you speak, you should speak everything in that. Otherwise, you will unable to make them people understand, or they will unable to understand you. So this Speak Now English is one of the bridge between your communication gap, whatever you have been gone throughout your career, and you could not speak English fluently. This Speak Now English is the one of the best platform for you to become a fluent speaker of English. Now friend, today I am going to teach you that what is grammar and why we should study the grammar. First of all, try to understand what is grammar. Very clear. Now understand why to study the grammar. Grammar क्यों पढ़ना चाहिए और ग्रामर पढ़ने की क्या जरूरत है और ग्रामर पढ़ने से क्या मिलेगा. Try to understand this. Grammar is the system of language. ये जो है एक सिस्टम है, ये सिस्टम के अलग अलग पार्ट्स है. वेरी सिंपल वे में मैं आपको बता रहा हूं. ग्रामर क्या है? ग्रामर एक सिस्टम है. ये सिस्टम के अलग अलग पार्ट है. ये पार्ट को आप इस तरह से समझ सकते हो, या तो हम इसको प्रेजेंट कह सकते हैं, इसको हम पास्ट कह सकते हैं और इसको हम फ्यूचर कह सकते हैं. यानी 1 2 3. और अगर आपने ये 1 2 3 कर लिया तो समझो जैसे मेरा whenever I
say to my students, I say 1 2 3 हो जाओ free, means you will become 100% free. Means this 3 will make you 100% fast speaker of English. Understand? Why this present, past, future? अब मैं इसको कुछ कुछ आपको हिंदी में भी बताऊंगा. ये व्याकरण क्या है, ग्रामर क्या है? ग्रामर एक सिस्टम है, ग्रामर एक तरीका है, और इसमें तीन ही चीज आपको समझना है. एक प्रेजेंट यानी वर्तमान क्या होता है, पास्ट यानी भूतकाल, और फ्यूचर यानी भविष्यकाल. वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, यानी आज, टुडे, yesterday एंड टुमारो. यानी ये हो गया आज, कल यानी बीता हुआ, पास्ट. टुमारो ये भी कल है, लेकिन ये आने वाला कल है. तो सबसे पहले ये अच्छी तरह से समझना है कि ग्रामर क्या है. ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. व्हाट इज द ग्रामर? ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. दैट सिस्टम हैज ओनली 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. वही प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को आपको सिंक्रोनाइज करना है. अब सिंक्रोनाइज कैसे करना? जैसे आपने देखा होगा जो भी हारमोनियम प्ले करते हैं, जो भी हारमोनियम प्ले करते हैं, उनके लिए 7 ही स्वर का रियाज करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं सा रे ग म प ध नि सा. सा रे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा. ये 7 स्वर को सिंक्रोनाइज्ड किया जाता है और हारमोनियम बजने लगती है. फॉर एग्जाम्पल इसका सिंक्रोनाइजेशन ऐसा हो सकता है, सारे ग रे ग म प म प ध प ध नि ध नि सा, सा नि ध नि ध प ध प म ग म ग रे ग रे सा. इसके अलग अलग सिंक्रोनाइजेशन से एक स्वर बनता है, एक म्यूजिक बनती है, और वो म्यूजिक हम सुनते हैं तो अच्छा लगता है. उसी तरह से भाषा जो होती है, भाषा भी एक सिचुएशन होता है. भाषा भी जो है एक समय है. वो समय या तो अभी हो सकता है प्रेजेंट, या जो 1 घंटा बीत गया है पहले पास्ट, या जो आने वाला 1 घंटा है वो हो सकता है फ्यूचर. अब ये अच्छी तरह से समझना. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिखता हूं प्रेजेंट, मैं जाता हूं. पास्ट में मैं जाता था, और फ्यूचर में मैं जाऊंगा. ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से समझना है. ये जो प्रेजेंट है, मैं जाता हूं, ये भी एक सिचुएशन है, टाइम है. ये पास्ट है, मैं जाता था, ये भी एक सिचुएशन है, ये टाइम था. और मैं जाऊंगा, ये भी एक सिचुएशन होगा कि मैं जाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको ट्रांसलेट करता हूं इंग्लिश में, तो ये होता है आई गो. मैं अलग अलग लिखता हूं आई गो समझने के लिए. और यहां पे मैं जाता था, इसका हो जाएगा आई वेंट. और मैं जाऊंगा, इसका हो जाता है आई शैल गो. यही ग्रामर है. मैं जाता हूं आई गो, मैं जाता था आई वेंट, और मैं जाऊंगा आई शैल गो. अब इसके अलग अलग सिंक्रोनाइजेशन हो सकते हैं, अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं. जैसे मैं कहता हूं मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कैसे नहीं जाता हूं. अब इसको सेंटेंसेस फॉर्म में देखेंगे तो यही 7 होगा. ओ मैं जाता हूं. लेकिन अगर नॉर्मल फॉर्म में देखेंगे तो यही एक 6 फॉर्म होता है. मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, क्या मैं नहीं जाता हूं, मैं कैसे जाता हूं, मैं कैसे नहीं जाता हूं. नॉर्मल लाइफ में हम जनरली 3 ही बोलते हैं, मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, क्या मैं जाता हूं, और रेस्ट ऑफ द 3 बहुत कम यूज होता है. उससे भी नॉर्मल लाइफ में हम कोई ना कोई एक सेंटेंसेस बोलते हैं, कोई ना कोई किसी एक फॉर्म में बोलते हैं. तो ये जो फॉर्म है एक सेंटेंसेस फॉर्म में आ जाता है. मैं खुश हूं, मैं खुश था, मैं खुश रहूंगा. ये अलग अलग सिचुएशन है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में. तो मेरा एक इंट्रोडक्शन ये बताना है,
जो आपको ऑलरेडी फ्लुएंट स्पोकन इंग्लिश में दिया गया है, जो भी वर्कशॉप मैनुअल बुक आपको दिया गया है, वो बुक में बहुत अच्छी तरह से क्लियर इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज. विद द हेल्प ऑफ ग्रामर it is not necessary that you will become a fluent speaker of English, but with the help of grammar definitely you can become a fluent speaker of English, because अगर आप उसका सिंक्रोनाइजेशन अच्छी तरह से करेंगे तो आपके टंग में वो एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव, वुड हैव, जिसके अनुसार ग्रामर का, समय का, सेंटेंस का सिचुएशन चेंज हो जाता है, वो आपके टंग में फिट हो जाएगा. अब मैंने इतने सालों में लास्ट 20 इयर्स प्लस से मैंने स्पोकन इंग्लिश टीच किया है और मैं ये छोटा छोटा सेंटेंसेस पूछता हूं. क्लासरूम के जो स्टूडेंट्स आते हैं जिसको मैं पढ़ाता हूं, मैंने हजारों को पढ़ाया है. अब मैं अगर पूछता हूं, मैं जाता हूं तो अलग अलग बोलने लगते हैं. आई एम गोइंग, आई गो, आई एम, बिकॉज ये जो चीजें टंग में फिट नहीं है. मैं जाता था, आई वॉज गोइंग, आई एम नॉट, आई एम नॉट. This is all stammering because this things is not fit your tongue. Again, I shall go, yeah, I shall be go, I am go. These all are the situational things. तो ग्रामर जो है वो एक सिस्टम है, व्याकरण जो है एक सिस्टम है जिस सिस्टम के द्वारा आप सीख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिस्टम के आप साइकिल चलाते हो और उस सिस्टम के द्वारा अगर आपने साइकिल चलाना सीख लिया है तो आप साइकिल चलाना कभी भूलेंगे नहीं. तो व्याकरण भी एक सिस्टम है. आपने बाइक चलाना सीखा है और अगर आपने वो चलाया तो बाइक चलाना कभी भूलोगे नहीं, बट आपने प्रॉपर प्रोसेस से, प्रॉपर सिस्टम से अगर सीखा है तब अच्छी तरह से बाइक चलेगी. जिस तरह से आप कार चलाते हो तो कार भी एक सिस्टम के थ्रू चलता है. आप ड्राइविंग सीखते हो, मोटर ट्रेनिंग स्कूल में जाते हो और आप ड्राइविंग सीखते हो. जब सीख लेते हो तो आप कार चलाना भूलते नहीं. लेकिन अगर कार चलाने से पहले, कार चलाना सीखने से पहले अगर आप बोलोगे पहले मैं मैकेनिक बन जाऊंगा, मैकेनिक तो छोड़ो, मैं पहले घर में कार बना लूंगा फिर मैं कार चलाऊंगा, तो फिर ये आपकी मर्जी है कि आप कार बनाओ या मैकेनिक बनो या कार चलाओ. मेरा तो मानना है कि आप पहले कार चलाना सीख लो और कार चलाओ. मेरा मानना है कि बाइक चलाना सीख लो और बाइक चलाओ. मेरा मानना है साइकिल चलाना सीख लो और साइकिल चलाओ. साइकिल का मैकेनिक बनना है या कार का मैकेनिक बनना है या बाइक का मैकेनिक बनना है, तो आपके पास बहुत सारे टाइम है, आप बनते रहोगे. लेकिन अभी ये जो वक्त है उसमें आप कम से कम एक फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश बन जाओ. बिकॉज ये लाइफ में हमेशा आपके साथ एक क्वेश्चन है कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती है. और ये मैं नहीं कहता हूं, ये पूरा जहां जिस एनवायरमेंट में हम रहते हैं, जिस परिवेश में हम रहते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं और अगर आप इंग्लिश नहीं समझते हैं, नहीं बोलते हैं, तो सबसे पहले तो ये होता है कि अरे इसको कुछ आता नहीं. मेरा ऐसा मानना नहीं है. मेरा ऐसा मानना है कि भाषा एक ऐसी चीज है जो सीखने वाला चीज है और सीखा जा सकता है. इंग्लिश कम्युनिकेशन इज द लर्नेबल थिंग्स which you can learn. It is not necessary that you will learn English and you will be with the as a bird you will fly. It is not like that. English is the learnable language and you can learn it. So I wish you all the best and get success in this international language of English, and God bless you a lot. Thank you very much. Friends, this is Kaushal Kishore. Welcome to Speak Now English. This is one of the unique and practical method to become a speaker of English. This would provide you the one of the best opportunity to become a speaker of English. Now, being as a trainer, I have been developed this program which is on the base of workshop. For the last 20 years, I have been taught for the spoken English trainee to become a native speaker of English. And this is really one of the helpful, unique, creative and practical learning method to become a native speaker of English. Now, according to me, without learning, life is meaningless and incomplete. Education is the birthright of every individual. Swami Vivekananda has said in his speech in the beginning of 20th century, to maintain India's progress on the highest level, literacy is the only option and solution. A human can make bridge even on the sea,
Now it is your time. Where are you going to make your bridge? We, as an International Language Institute, offer you opportunity to enhance communication skills in English and self-development to fulfill your desire. It has one of the unique, creative and practical workshop training modules to become fluent native speaker of English. Proper, effective communications in English, then yes, you need to understand the grammar, which will help you as a roadmap, as a signpost to become a good speaker of English. Now, I'd like to give you an example. Since childhood, we speak A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K from A to Z. Since we have spoken from the childhood. Similarly, we have not spoken Z to A. Now, the moment we will do the practice of speaking Z to A, we can become even a speaker of Z to A. So, I'd like to present why grammar is required. Grammar is a system of language. People sometimes described grammar as a rule of language. But in fact, language has no rule. If we use word rules, it suggests that somebody created the rules first and then spoke the language, like a new game. But language did not start like that. Languages started by people making sounds. All languages change over time, we call grammar, as simple reflections of language at a particular time. Do we need to study grammar to learn a language? The short answer is no. Many people in the world speak their own native language without having studied its grammar. Children start to speak before even they know the word of grammar. But if you are serious about learning foreign language, the long answer is yes. Grammar can help you to learn a language more quickly, more efficiently. It is important to think of grammar as something that can help you like a friend. When you understand the grammar or system of language, you can understand many things yourself without having to ask a teacher or look in a book. So thinking of a grammar something good, something positive, or something that you can use, find your way like a signpost or map. एडवाइस शिक्षा या सलाह देना. एडोर पूजना, श्रद्धा रखना, आराधना करना. एडमायर प्रशंसा करना, सराहना करना. बिलीव विश्वास करना, भरोसा रखना. बिलोंग टू संबंधित होना. केयर परवाह, हिफाजत. कंटेन रखना.
कंसिस्ट बनावट, अनुसार होना, बना होना. डिज़ायर इच्छा करना. डिस्क्राइब वर्णन करना. डिस्कस विचार विमर्श करना. डिसलाइक नापसंद करना, बुरा लगना. डाउट संदेह करना. फील अनुभव करना. फॉरगिव क्षमा करना. फॉरगॉट भूलना, ध्यान से निकाल देना, सोचना, बंद कर देना. हियर सुनना. हेट नफरत करना, घृणा करना, बैर रखना. होप आशा करना, उम्मीद करना. इमेजिन कल्पना करना. नो जानना, पहचानना, समझना. कीप रखना, निभाना. लव प्यार करना. लाइक पसंद करना. लुक देखना, दिखाना. मीन मतलब होना, औसत. माइंड ध्यान देना. मिसअंडरस्टैंड गलत समझना. मैटर महत्वपूर्ण होना. नोटिस देखना. ऑर्डर आज्ञा देना, क्रम. ओन अपनाना, अपना. प्लीज खुश करना. प्रेज प्रशंसा करना. पजेस रखना, अधिकारी. रिकॉल याद करना, वापस बुलाना. प्रेफर ज्यादा पसंद करना. रिफ्यूज इनकार करना. रिक्वेस्ट अनुरोध करना, निवेदन. रिमेंबर याद करना. रियलाइज महसूस करना, एहसास. रिकलेक्ट याद करना. रिजेंबल एक समान दिखना, जैसे लगते हैं. रिक्वायर जरूरत होना. सी देखना. स्मेल महकना, गंध. सपोज मानना, मान लीजिए. सीम मालूम होना, लगना. सफाइज पूरा होना. थिंक सोचना. अंडरस्टैंड समझना, मानना. विश इच्छा करना, आशा करना. वांट चाहना, इच्छा. सूट अनुकूल होना, संतुष्ट करना. फील अनुभव करना, महसूस, परखना. ऑर्फनेज अनाथालय. फ्लाई टेक ऑफ उड़ना, उड़ाना. इनॉग्रेट उद्घाटन करना. स्वेर कसम खाना. स्नोर खराटा लेना.